Hello my dear friends, I am Professor Wayam Khan and this is the part 5 of unit number 1, Introduction and Representation of Control System Components of the subject Automatic Control System. And in today's video we are going to discuss the properties of transfer function, various advantages and disadvantages of transfer function, and mathematical representation of mechanical and electrical system. Now in today's video we will only see the representation of mechanical system, and in next video we will see the representation of electrical system. Now before proceeding to the subject, I'll request you to subscribe to my channel, like this video and share this video. Let us begin. Now in last few videos we have studied the transfer function. Transfer function is nothing but the ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform of input of a control system. It can also be written like this, and that is the first property of a transfer function. The transfer function of a system is the Laplace transform of its impulse response under assumption of zero initial condition. It can also be written like this. Okay. Conversely, the transfer function can be determined from system input output pair by taking ratio of Laplace of output to the Laplace of input. Okay, and the third property of this transfer function is the transfer function of a system. It does not depend on the inputs to the system. In last video we have seen that the input is of two type. There is reference input and then there is actual input. So the transfer function, it does not depend on these two, or you can say it does not depend on the inputs to the system. Okay, then the system poles and zeros can be determined from its transfer function. If you want to determine the poles and if you want to determine the zeros of a system, then it can be determined with the help of a transfer function by putting some values equal to 0 and equal to infinity. If you put the values equal to infinity, you will get the poles, and if you put the values equal to 0, you will get the zeros. Okay, now the stability can be found from characteristic equation. The stability of a system can be found from the characteristics equation, and this part we are going to discuss in coming chapters. Okay, so we'll not put a lot of efforts here. We'll discuss this in actual the chapter of stability. And the last property of transfer function is only defined for linear time invariant system. It is only defined for linear time invariant system and not for the non-linear system. You cannot use transfer function for non-linear system. You can use it for only linear system. It is to be remembered very carefully. Okay, the next one is the advantages of transfer function. If transfer function of a system is known, then the response of the system to any input can be determined very easily. Since the transfer function is ratio of Laplace of output to the Laplace of input, so if you know the transfer function, like if यू आर गिविंग, अगर आप एक इनपुट दे रहे हैं 2 यूनिट्स जिसका कन्वर्जन हो रहा है 4 यूनिट्स में, सो यू नो दैट फंक्शन इज डबलिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो अगर आपको कैलकुलेट करना है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हमको 4 इनपुट पे कितना आउटपुट मिलेगा, अगर आपको पता है कि मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन है ये डबल कर रहा है वैल्यू को आउटपुट की, सो यू विल आंसर इट सिंपली 8. 4 का डबल हो जाएगा 8. So that is the advantage of transfer function. If you know the transfer function, you can determine any output with respect to any input. Okay, now a transfer function is a mathematical model and it gives the gain of the system. हमको gain पता चलता है system का. Since it involves the Laplace transform, the terms are simple algebraic expressions and no differential terms are present. ये simple linear equations, algebraic equations रहते हैं और इसमें किसी भी तरीके के डिफरेंशियल टर्म्स यूज नहीं होते. सो ये सिंपल है. पोल्स और ज़ीरोस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं by the knowledge of transfer function.
कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि ट्रांसफर फंक्शन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इनिशियल कंडीशन। हम हमेशा इनिशियल कंडीशन ज़ीरो रखते हैं, जिसकी वजह से हमको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने मिलता है, बट इनिशियल कंडीशंस हर बार ज़ीरो रहेंगी ये ज़रूरी नहीं है। दैट्स वाई इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इनिशियल कंडीशंस। देन द ट्रांसफर फंक्शन कैन बी डिफाइंड फॉर लीनियर सिस्टम्स ओनली, नॉन लीनियर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। एंड नो इन्फेरेंसेस कैन बी ड्रॉन अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है ये वहाँ पर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए ये डिसएडवांटेज है। ओके, सो दिस वाज अ क्विक study about properties, disadvantages and advantages of transfer function. Now in today's most important topic is mathematical modeling and representation of a physical system. कोई भी physical system को एक mathematical model से कैसा represent किया जाता है। अब पहले तो हम समझ के लेंगे कि physical system क्या है। अब physical system is a system in which physical objects are connected to perform an objective। जैसे अगर मैं एक मोटर बोलूँ, अगर एक मैं मोटर का एग्जांपल लेता हूँ, तो मोटर का काम क्या है? यस, टू गिव द रोटेशनल, और यू कैन से गिव द रोटेशनल आउटपुट बाय टेकिंग इलेक्ट्रिकल इनपुट, मतलब इलेक्ट्रिकल से लेके इनपुट लो और मैकेनिकल आउटपुट में उसको क्या करो, जनरेट करो इन द फॉर्म ऑफ ए रोटेटिंग शाफ्ट। बराबर है, ये फिजिकल सिस्टम है। इस फिजिकल सिस्टम में कुछ ऑब्जेक्टिव है। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? टू रोटेट द शाफ्ट, शाफ्ट को रोटेट करना। शाफ्ट के रोटेशन पे फिर हम कुछ अप्लायंसेस लगा सकते हैं, कुछ डिवाइसेस लगा सकते हैं, जिसकी मदद से हम हमारा आउटपुट जो है वो यूज़फुल में कन्वर्ट या फिर उसको यूज़फुली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, देन what other things are said about physical system is we cannot represent any physical system in its real form। हम कोई भी physical system को उसके real form में represent नहीं कर सकते। हम पूरी की पूरी मोटर नहीं ड्रॉ करते, पूरा का पूरा इंजन ड्रॉ नहीं करते। हम जब भी हमको एक्सप्लेनेशन देना है अबाउट एन व्हीकल, एक व्हीकल के बारे में अगर एक्सप्लेनेशन देना है तो हम पूरा व्हीकल पूरा ड्रॉ नहीं करते। हम उसको कभी कभी ब्लॉक डायग्राम्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि वो आसानी से समझाया जा सके। बिकॉज देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्सिटीज़, वेरी इंट्रिकेट शेप्स, बहुत सारे हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स ईजी नहीं होते हैं ड्रॉ करने के लिए। इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं डायरेक्टली बाय अ फिजिकल सिस्टम। ओके, देयरफॉर वी हैव टू मेक सम अजम्पशंस फॉर एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ द सिस्टम। ओके, हम स्टडी के लिए वो पूरा सिस्टम ड्रॉ करेंगे, बट जब हमको उसका एनालिसिस या उसका सिंथेसिस करना है तब हम वो पूरा का पूरा सिस्टम ड्रॉ करना हमें पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वी यूज़ ब्लॉक डायग्राम्स। ओके, तभी हम क्या करते हैं, उसके ब्लॉक डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। एन आइडियलाइज्ड फिजिकल सिस्टम इज कॉल्ड ए फिजिकल मॉडल। एक फिजिकल सिस्टम को अगर आपने कुछ एक पर्टिकुलर फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से बताया तो उसको बोला जाता है फिजिकल मॉडल। ओके, अ फिजिकल सिस्टम कैन बी मॉडल इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम and required accuracy with which we have to deal. Now most of our control systems are of mechanical or electrical type or a combination of both. For example, an elevator, एक लिफ्ट का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि हमारा मोटर जो है वो मोटर से हम लिफ्ट को ऊपर नीचे कर रहे हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। देन उसके जो वेट्स लगे हैं, उसका जो मोशन है, दिस इज़ रिलेटेड विथ योर मैकेनिकल components. So an elevator is an example of combination of mechanical and electrical components. Okay, so ऐसे components को हमको क्या करना है, मैथमेटिकल मॉडल्स से रिप्रेजेंट करना है। अब मैथमेटिकल मॉडल क्या रहता है? मैथमेटिकल मॉडल्स आर नथिंग बट mathematical equations used for representing the component or to represent the control system. The process of drawing the block diagram
for mechanical and electrical system to find the performance and transfer functions is called mathematical modeling of control system. इस मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम क्या करेंगे, हमारी जो कंट्रोल सिस्टम रहेगी, फिर वो मैकेनिकल रहने दो या इलेक्ट्रिकल रहने दो, इसको ब्लॉक डायग्राम और इक्वेशन के फॉर्म से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि उसका परफॉर्मेंस जो है वो हम क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सके. सो ऐसे देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल सिस्टम, one is mechanical and another one is electrical. So let's see how the first one, that is mechanical system, is represented. And before that we should know that mechanical systems are all about motion. Mechanical system में motion है, okay, and the motion in mechanical system can be categorized in two different types. First one is translational, मतलब जिसमें लीनियर मोशन है, जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ओके, पिस्टन एंड सिलेंडर ब्लॉक का, मतलब इसमें कौन सा मोशन है हमारा, ट्रांसलेशनल मोशन है, लीनियर मोशन है, ओके, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है. और उससे बिल्कुल अपोजिट दूसरा जो मोशन है वो है रोटेशनल मोशन, जो हमें शाफ्ट में देखने मिलता है. रोटेशन होता है, घूमता है एक एक्सिस के अराउंड, बराबर है, उसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन. और एक रेसिप्रोकेट होता है मोशन, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल मोशन. ओके, सो दीज टू आर द टाइप ऑफ योर मैकेनिकल सिस्टम्स. अब पहला वाला आज हम स्टडी करेंगे वो है ट्रांसलेशनल. ओके, ट्रांसलेशनल क्या रहता है या लीनियर सिस्टम क्या रहता है, द मोशन दैट टेक्स प्लेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन मूव हो, जो सिस्टम मूव हो रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल और लीनियर सिस्टम. सिंपल चीज़ है. देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट वी हैव टू स्टडी. हमको 3 अलग फोर्सेस स्टडी करना है, इनका मैथमेटिकल मॉडल स्टडी करना है, जिसमें से पहला है मास, या जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया फोर्स, दूसरा है स्प्रिंग, और तीसरा है फ्रिक्शन, यह जिसको बोला जाता है डैम्पिंग फोर्स. ओके, सो लेट अस बिगिन विथ द मास. Now inertia force or mass, आपको पता है inertia, the force that tends to keep the body in at rest. Okay, now consider a body of mass m. एक body है mass m की, which is shown in the figure A. Okay, this is a body which is having mass m and acceleration a. Then according to Newton's second law of motion, क्या मिलेगा हमको इक्वेशन, force is equals to mass into acceleration. हमने अगर इस बॉडी को फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, सो दिस बॉडी विल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. अगर इसको हमने फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई अगर किया, तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूव होंगी. सो दिस थिंग इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट. ये चीज़ क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है. ओके, नाउ दिस, अगर इसको हमने न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई किया, सो विल गेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और यही इक्वेशन को अगर हमने इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन लिखा, सो इट विल बी रिटन एज एफ ऑफ टी इक्वल्स टू मास इनटू ए ऑफ टी. ओके, नाउ दिस टी रिप्रेजेंट्स द टाइम डोमेन. नाउ this one is acceleration, this one is acceleration, and acceleration is nothing but second derivative of your, yes, what, displacement, second derivative of your displacement. Okay, now this is your body of mass m, and this is our force applied to it, and because of this force we are getting this x displacement. Now in terms of, अगर velocity के terms में अगर हमको इसको लिखना है, so how do you write in terms of velocity? Yes, we write it like this: f of t is equals to mass into dv of t by dt. जैसे हम डिस्प्लेसमेंट है, तो x अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको अगर हमको वेलोसिटी में लिखना है, सो इट गेट्स dx by dt. अगर उसका नेक्स्ट वाला डेरिवेटिव लिया जाए, सो इट इज़ योर dv by dt.
एंड उससे अगर नेक्स्ट डेरिवेटिव लिया जाए तो इट इज़ d2x बाई डी टी स्क्वायर. सो ये एक एक डेरिवेटिव्स है. जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी इज नथिंग बट change in the displacement with respect to time. Then again, what is acceleration? Acceleration is nothing but change in the displacement with respect to, sorry, change in the velocity with respect to time. So it can be represented like this in terms of velocity, whereas in terms of displacement the above expression can also be written as f of t equals to m into d2x dt divided by dt square. Now if you apply Laplace transform to this system or to this equation, this particular equation, you get f of s equals to m s square into xs, where your d2 by dt square gets replaced by your s square, okay, and your t gets replaced by s. So this is the mathematical representation or mathematical model for an inertia force or for a mass के लिए ये क्या है हमारा mathematical representation है. Okay, so next one is spring force. Spring force क्या रहता है? We all have seen spring and we know how it contracts and how it retracts. वो कैसे दबाया जाता है, उसको खींचे तो कैसा वो उसकी पोजीशन पे वापस आता है, उसको दबाए तो वो वापस कैसे आता है. ये चीज़ हमने स्प्रिंग के बारे में देखा है. अब मैकेनिकल सिस्टम अगर है तो इस मैकेनिकल सिस्टम में कई बार पॉसिबल है कि हमारा एक कंपोनेंट जो है वो क्या रह सकता है, स्प्रिंग रह सकता है, या स्प्रिंग के जैसा काम करने वाला कोई अदर कंपोनेंट रह सकता है. फॉर एग्जांपल बेल्ट है, केबल है, जैसे कि एलिवेटर है, तो एलिवेटर की जो बेसिस है, उसके नीचे के जो पार्ट है उसके अंदर स्प्रिंग्स रहते हैं, उसमें केबल्स रहती है. यस, सो ये केबल्स, ये स्प्रिंग, ये कंपोनेंट को हमको अगर इसका परफॉर्मेंस चेक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा. और ये मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए हम जो रेफरेंस लेंगे वो रहेगा हमारा स्प्रिंग या स्प्रिंग फोर्स. ओके, नाउ कंसीडर स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर में जो स्प्रिंग दिखाई है ये कंसीडर करो. ये स्प्रिंग यहाँ पर फिक्स्ड एंड है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इस साइड से उसको फोर्स अप्लाई किया. ये के जो है वो स्प्रिंग का स्टिफनेस है. ओके, अगर यहाँ से इस फोर्स को अप्लाई किया गया है तो इस स्प्रिंग में कुछ ना कुछ क्या होगा, यस, डायमेंशन में चेंजेस आएंगे, मतलब इस स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी. सो इस एंड से वो x1 डायरेक्शन में मूव हो रहा है. x1 डायरेक्शन में बोलने के बजाय x1 अमाउंट में, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड ए एंड का क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है. उसी तरीके से ये बी एंड का डिस्प्लेसमेंट है x2. सो दीज टू आर द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ एंड ए एंड एंड बी, ओके, बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F. Now net displacement due to the application of force F of t is equals to x1 minus x2 at the end A. Okay, A end पर जो displacement रहेगा it will be equal to x1 minus x2. Okay, ये रहेगा उसका total displacement. Okay, therefore अगर हमको इसको सिस्टम में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लाना है, so it will be like f of t equals to k in bracket x1 of t minus x2 of t. So it is also written like f of t, or here f of s is also used, f of small s, t is also used, s is used for representing spring. So fs of t can also be written, it can also be written like fs of t, which is equals to k x of t. k x of t भी इसको क्या करते हैं, हम लिखते हैं, बट हम जो यूज़ करेंगे वो ये वाला है, f of t equals to k in bracket x1 of t minus x2 of t. If the force is applied from अदर डायरेक्शन, मतलब उल्टे साइड से अगर लगाया जाए, एट बी एंड अगर फोर्स लगाया जाए, मतलब ये टेंसाइल है, अगर कंप्रेसिव लगाया जाए
सो यही इक्वेशन उल्टा हो जाता है, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू के x2 of t minus x1 of t. Now if you apply Laplace transform to this function, to this equation number 1, so you will get f of s equals to k x1 of s minus x2 of s, where k represents your spring constant of stiffness. Okay, so this is the representation of spring force in terms of mathematical model. Okay, now the last one is damping force or friction. Whenever there is a motion, you all of you know what is the friction. Whenever there is a motion, there exists some friction. Now friction exists between moving body and a fixed support, or in moving or in between the surfaces. जो surfaces हैं इनके बीच में, या जिन सर्फेसेस के बीच में मोशन हो रहा है, यहाँ पर हमको क्या फ्रिक्शन देखने मिलता है. और कई बार समटाइम्स वी यूज विस्कस फ्रिक्शन इन सम कंपोनेंट्स. कुछ कंपोनेंट्स में, कुछ सिस्टम्स में हम क्या करते हैं, विस्कस फ्रिक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं. अब विस्कस फ्रिक्शन क्या रहता है, एक फ्रिक्शन जिसका विस्कस फ्रिक्शन का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा पिस्टन सिलेंडर का मोमेंट है. ओके, इस पिस्टन सिलेंडर के बीच में क्या रहता है, हमारा फ्यूल रहता है या फिर हमारा ऑयल रहता है. ये ऑयल ही क्या है, एक किस्म का विस्कस फ्लूइड है. अब ये विस्कस फ्लूइड क्या करता है, इन दोनों सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस करता है. सो इसी को बोला जाता है विस्कस फ्रिक्शन. ओके, द फ्रिक्शन बिटवीन liquid and solid body. Okay, now sometimes this viscous friction is intentionally introduced in some systems. इसको intentionally लगाया जाता है. क्यों लगाया जाता है, ताकि उस सिस्टम का जो मोशन है या उस सिस्टम का जो लीनियर मोशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, उसको स्लो किया जाए. ओके, जैसे कि हमारे जिम के कंपोनेंट, जिम में आपने देखा होगा कुछ वेट्स रहते हैं, तो वेट्स के अगेंस्ट में कुछ स्प्रिंग्स लगी रहती है. कई बार वहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम्स भी लगी रहती है, जिसको ही बोलते हैं हम डैशपॉट या फिर डैम्पर. ओके, उसको बोला जाता है डैशपॉट या फिर डैम्पर. ओके, नाउ फॉर विस्कस फ्रिक्शन वी एज्यूम दैट द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. जो भी डैम्पिंग फोर्स है ये वेलोसिटी के कैसा है, प्रोपोर्शनल है. दिस इज एज्यूम्ड फॉर विस्कस फ्रिक्शन. अभी प्रोपोर्शनल है मतलब क्या है, दिस इज योर डैम्पिंग फोर्स एफ डी ऑफ टी, या इसको एफ ऑफ टी अगर हम पकड़े, सो दिस इज योर डैम्पिंग फोर्स. ओके, दिस इज योर डैम्पिंग फोर्स. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है. ओके, सो दिस एफ डी ऑफ टी इज प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी. वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल है, मतलब एफ डी ऑफ टी इज प्रोपोर्शनल टू वी ऑफ टी, मतलब वेलोसिटी ऑफ टी, सॉरी वी ऑफ टी. अगर इसको इक्वल साइन में रिप्रेजेंट करना है, सो वी हैव टू यूज सम कांस्टेंट. तो यहाँ पर जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं वो है b. ओके, नाउ दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट b. सो योर सिस्टम will be represented like this, f d of t equals to b v of t. Now v of t we know that it is the first derivative of your displacement, so it is written as dx of t by dt. dx by dt से भी आप क्या करते हैं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ दिस, अगर यही चीज मैं x1 और x2 के फॉर्म में लेना चाहूँ, जैसे कि इस एंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर मैं x1 कंसिडर करूँ, मीन्स दिस एंड मूविंग टूवर्ड्स दिस पॉइंट, सो इट विल गेट डिस्प्लेस्ड बाय x1 एंड दिस पॉइंट डिस्प्लेस्ड बाय x2. ओके, सो द नेट डिस्प्लेसमेंट अगेन विल बी x1 माइनस x2. देयरफॉर एफ डी ऑफ टी विल बी इक्वल टू बी डी by dt x2 minus x1. Sorry, this one is x2 minus x1. So x2 of t minus x1 of t.
So this equation can also be used for representing the damping force or friction. Okay, and if you apply Laplace to this, you will get fd of s equals to b s x2 of s minus x1 of s, and these three are the translational motion or the representation of translation motion of a mechanical system. In next video we'll see rotational motion and the application of mathematical model to electrical system. Now until that, please stay safe, stay at home and keep learning. Thank you.